Hello everyone. We will discuss now the conceptual short questions of chapter number 7. Question number 1. Give two applications in which resonance play an important role. तो ये एप्लीकेशंस जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी हैं जी, आप वहाँ से भी इनका आंसर ले सकते हैं। जिस तरह कि माइक्रोवेव ओवन में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेजोनेंस स्टडी करते हैं, आप रेडियो जो हमारे पास होते हैं उनमें आप इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को स्टडी करते हैं एंड अप टू सो ऑन। आप वो दो एप्लीकेशंस भी लिख सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास जो दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 इज ये एप्लीकेशन भी है हमारे पास। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फोर्क कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेकिंग ए सोनोमीटर वायर ऑफ नोन मास पर यूनिट लेंथ एंड अंडर नोन टेंशन resonate with the vibrating fork. Next example is the amplitude of the oscillations of a child on a swing is increased by pushing with a frequency equal to the natural frequency of the swing. ठीक है जी, ये दो एप्लीकेशंस भी आप मेंशन कर सकते हैं। Question number 2. What happens to the time period of a simple pendulum if its length is doubled? The time period of simple pendulum is given by t is equals to 2 pi square root L over G. Above relation shows that if the length of the pendulum is increased, its time period also increased. अब जी हमारे पास जैसे कि ऊपर रिलेशन गिवन है, इसमें हम टाइम पीरियड में जो लेंथ है वहाँ अगर 2L पुट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट 2L ओवर G। नाउ आप स्क्वायर रूट 2 जो है उसको अलग कर लें और बाकी रिलेशन आप एज इट इज लिखा रहने दें। तो 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G जो हमारे पास है वो t के बराबर है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर अगर हम t पुट कर दें तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का जो आंसर है वो 1.41 आता है। तो जो न्यू टाइम पीरियड होगा इट विल बी 1.41 टाइम्स ग्रेटर देन द previous or the natural time period in which we use the length to be L. If the length of the pendulum is doubled, then its time period is increased by 1.41 times the original time period. Question number 3. What will be the frequency of a simple pendulum if its length is 1 meter? अगर लेंथ 1 मीटर हो जी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। तो f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट g ओवर l। आप l की जगह 1 पुट करें, g की वैल्यू 9.8 है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.498 हर्ट्ज या फिर 0.5 हर्ट्ज आएगा। क्वेश्चन नंबर 4. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ free and forced oscillation. Answer. Free oscillations. A body is said to be executing free oscillation if it oscillates with natural frequency without the interference of external force. And example of it is a simple pendulum vibrates freely with its natural frequency that depends on its length when it is slightly displaced from its mean position. Forced oscillation. A body is said to be executing forced oscillations if it oscillates with the interference of external force. If simple pendulum is struck repeatedly, then the force vibrations are produced. तो अगर कोई भी बॉडी वन टाइम ट्रिगर एक दफ़ा डिस्प्लेस करके छोड़ रिलीज कर दें तो फिर वो वाइब्रेट करती रहे तो वो फ्री ऑसिलेशंस होंगी। और अगर किसी बॉडी के ऊपर आपको कॉन्स्टेंटली फोर्स अप्लाई करनी पड़े हर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, तो वो जो ऑसिलेशंस होंगी, वो जो वाइब्रेशंस होंगी, वो फोर्स्ड वाइब्रेशंस होंगी। Question number 5. How can you compare the masses of two bodies by observing their frequencies of oscillation when supported by the spring?
Frequency of mass spring system is given by the formula F is equals to 1 over 2 pi square root K over M. Above relation shows that the frequency of the body is inversely proportional to the mass of the body. So body have greater mass will have low frequency, and the body with low mass will have the higher frequency. Frequency of mass spring system is given by, अब F1 एक कॉरेस्पॉन्डिंगली स्प्रिंग 1 की फ्रीक्वेंसी है, F2 कॉरेस्पॉन्डिंगली स्प्रिंग 2 की फ्रीक्वेंसी है। आप दोनों की रेशो कैलकुलेट करें तो जो पाई और 1/2 और K जो है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, ये हम एज्यूम करें, तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास जो रिलेशन बचेगा वो F1/F2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट M2/M1 होगा। तो जैसे कि अबाव रिलेशन में गिवन था कि फ्रीक्वेंसी और मैस आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं, इसी तरह लास्ट में भी दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज डिवाइड करवाने से भी हमें यही रिलेशन मिला। From above relation we can say that the masses are inversely proportional to the square of the frequencies. आप अगर लेफ्ट साइड पे फ्रीक्वेंसीज का स्क्वायर लें तो राइट साइड से मैसेज के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये जो मैसेज का रेशो होगा वो फिर स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, a wire hangs from the top of a dark high tower so that the top of the tower is not visible. How would you be able to determine the height of the tower? इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो हाइट है वो हमने कैलकुलेट करनी है, और जो टॉप वाला पॉइंट है एक टावर का, लेट्स से कि ये जो हमने यहाँ पर ये छोटी सी रेक्टेंगल बनाई है, ये वाला उसका टॉप वाला पॉइंट है। हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम एक वायर अटैच कर दें उसके टॉप वाले पॉइंट से, और यहाँ पर उसका एक बहुत स्मॉल सा हैवी मैस अटैच कर दें और इस मैस को डिस्प्लेस करें, डेफिनेटली ये जो मैस होगा ये सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ा सा ऊपर तक होगा। तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ ही फाइंड कर सकते हैं बाय डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये यहाँ पर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसकी जो लेंथ होगी वो हम अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करेंगे टू द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सिंपल है अगर हम इसको सिंपल पेंडुलम वाले रिलेशन से सॉल्व करें। तो हमारे पास जो टाइम का रिलेशन है वो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G है। आप दोनों तरफ स्क्वायर लें और लेंथ को आप एक राइट साइड पे रहने दें, बाकी चीज़ों को टाइम पीरियड हमें इस फार्मूले से मिल जाएगा, सॉरी इस प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, और g की वैल्यू हमें 9.8 पता है। तो हम यहाँ से L जब हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो हम एक अप्रॉक्सीमेट लेंथ, एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू उस हाइट की बता सकते हैं। ठीक है जी। Question number 7. Why in simple harmonic motion the acceleration is 0 when the velocity is greatest? The acceleration of the projection of a body moving in circular path is given by, for acceleration and the for velocity of projection. A is equals to minus omega square x, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए रिलेशन है। हमें ये जो गिवन है कि हमने मीन पोजीशन की बात करनी है, तो मीन पोजीशन के ऊपर हम अगर देखें कि एक्स की वैल्यू जो होती है डिस्प्लेसमेंट वो ज़ीरो होती है। यहाँ पर दोनों रिलेशन में आप ज़ीरो पुट करें तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी और वेलोसिटी की वैल्यू आपको ओमेगा एक्स नॉट मिलेगी, जो कि उस टाइम के ऊपर हमें ये शो कर रही होगी कि मीन पोजीशन के ऊपर से गुजरते वक्त उस पेंडुलम की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाली बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब एक्सेलरेशन क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी और वो जो बॉडी मूव कर रही होगी
वो सिर्फ और सिर्फ अपने इनर्शिया की वजह से मूव कर रही होगी। ठीक है जी। Question number 8. What is the total distance covered by a simple harmonic oscillator in a time equal to its time period? The amplitude of oscillation is A. Answer. Total distance covered by the body is 4 times of A. Time period is the time during which the vibrating body completes one round trip, and in one round trip total distance covered by the simple harmonic oscillator is 4 times greater than its amplitude. Total distance covered is equals to 4 times addition of A is 4A. यहाँ पर अगर आप देखें ना तो डिस्टेंस की बात हो रही है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही। ये दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आ सकता है। अगर आप इसको डिस्प्लेस करते हो तो ये एक दफ़ा ए डिस्टेंस कवर करेगा, वापस आएगा, ए डिस्टेंस कवर होगा, देन इस पॉइंट के ऊपर फिर से मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कवर होगा, फिर से ए, और ये इसका एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4a। मगर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होती ना तो हम कहते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इन ए कंप्लीट राउंड ट्रिप इज 0, लेकिन यहाँ पे हमसे डिस्टेंस पूछा गया था तो वो 0 नहीं होगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। Question number 9. What happens to the frequency of a simple pendulum as it oscillations die down from large amplitude to small? According to the formula of frequency of a simple pendulum, f is equals to 1 over 2 pi square root g over L. By above relation, it is clear that the frequency is independent of the amplitude. But in practical system, the time period of a simple pendulum increases as the amplitude decreases. Now frequency is reciprocal of the time period, so the frequency is decreases as the oscillation die down from large amplitude to small amplitude. Basically for very small displacement जो frequency और time period होता है ये independent होता है amplitude से। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस कर दें मीन पोजीशन से पेंडुलम को तो उस टाइम के ऊपर टाइम पीरियड की डिपेंडेंस एम्पलीट्यूड के ऊपर आ जाती है। तो टाइम पीरियड जो होता है वो इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड, हेंस फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की, तो वो फ्रीक्वेंसी उस टाइम के ऊपर डिक्रीज करेगी। ठीक है जी, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। Question number 10. A singer holding a note of right frequency can shatter a glass. Explain. Yes, a singer holding a note of right frequency can shatter a glass due to resonance phenomena. If a singer holds a note of particular frequency equal to the natural frequency of the glass, then resonance occurs and the amplitude of vibration of glass increases, and as a result, the glass may shatter into pieces.